There was a boy in Japan, and once in his lifetime he met with an accident, and during that accident he lost his left arm. He lost his left arm in that accident, and after that he started feeling that my life is over now. I cannot do anything. I cannot be successful. It is absolutely over. But his parents used to inspire him continuously. No, you have got potential, you have got talent inside, you will definitely succeed. Don't worry. There would be one day when you would be known by the world. One fine day he was watching television, and during watching that television he saw some martial art competition going on. He saw that for 1.5 hours, and after that he realized that this is something what I would like to learn. I think this is something which interests me a lot. And he decided that he would learn martial arts. Japan में वैसे भी कराटे, ताइक्वांडो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं. And he decided to go for martial arts. He talked to his father. His father said, "Okay, don't worry, son. I'll take you to some martial arts master." So next day they went to a martial arts school. They met with the master over there, the head. The way we have teachers, I think they have masters. The father told that master that my son wants to learn martial art. Master said, "Call him." The son was called, and master saw him. A one-handed boy wanted to learn martial arts. Master said, "तुम martial arts सीखना चाहते हो?" He said, "Yes, sir, I want to learn it." तुम्हें लगता है तुम सीख पाओगे? He said, "Yes, sir, I would definitely." Then master raised two conditions. He said, "Look, तुमको मेरी 2 शर्तों को मानना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ." वो 2 शर्तें हैं. जब भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरी हर बात मानोगे. You have to follow each and every instruction of mine. बिना मना किए. एंड सेकेंडली यू विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चंस. कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. द स्टूडेंट सेड, "फाइन, ओके, आई विल गो अहेड." मैं तैयार हूँ, मुझे सीखना है किसी भी हालत में, मुझे सारी शर्तें आपकी मंजूर हैं. मास्टर डिसाइडेड, ओके, कम टुमारो मॉर्निंग. अगले दिन सुबह से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई. लड़का वहाँ पहुँचा. मास्टर ने उसको एक एक्सरसाइज बताई. देखो, तुमको एक सिंपल एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ शुरुआत करने के लिए. तुमको ऐसा करना है, तुम्हें अपना बायां पैर आगे लाना है, दायां हाथ ऐसे करना है, घुमाकर उसे अपने सीने के पास लाना है, वापस दायां हाथ के पीछे फेंकना है, और फिर अपना पैर पीछे ले लेना है. यू हैव टू ब्रिंग योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, राइट हैंड, देन ब्रिंग इट फ्रंट, एंड देन पुश इट बैक, एंड देन कम बैक. द सेम एक्सरसाइज यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम मॉर्निंग सिंस इवनिंग टिल इवनिंग. द बॉय स्टार्टेड, कंटिन्यूड द एक्सरसाइज. सुबह से शाम तक दिस 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 एंड दिस. After a few days, his father came and observed him. He observed that the son was doing this particular exercise. After 1 year, his father again came. He saw his son doing the same exercise. But the conditions were, they cannot say no, and they cannot ask any question why. They continued for 2 years. Every day, from morning till evening, the boy, one-handed boy, was doing the same exercise. This, and this. And after 2 years, the master declared that this year for the international martial art competition, this boy would represent our academy. ये लड़का इस बार हमारे यहाँ से इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जाएगा और हमारी अकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा. एवरीबडी ओवर देयर सेड, मास्टर ये क्या हो गया है? हाउ कैन यू सेंड सच अ बॉय हु कैन नॉट विन इवन अ सिंगल मैच, इवन अ सिंगल फाइट, ही विल नॉट बी एबल टू स्टे. एंड मास्टर सेड, माई डिसीजन इज फाइनल, ही वुड गो. वो वहाँ गया. पहले राउंड में ही जैसे ही कॉम्पिटिटर ने इसको देखा, देखते ही बोला कि ये लड़ने आया है मुझसे. और जैसे ही फाइट शुरू हुई, 5 मिनट के बाद उस लड़के का पिट कर बुरा हाल था. द कॉम्पिटिटर वॉज एब्सोल्युटली फिट एंड हैविंग अ लॉट ऑफ टेक्निक्स टू हैंडल, बट द बॉय वॉज हैविंग ओनली सिंगल टेक्निक एंड ही कुड नॉट रेजिस्ट एनीथिंग. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द बॉय वॉज एब्सोल्युटली टायर्ड, पूरी तरह से बिल्कुल हार चुका था, झुक चुका था, और तब वो कॉम्पिटिटर सामने आया और बोला, डू यू वांट टू फाइट मोर? कुछ और लड़ना चाहते हो? एंड द बॉय वॉज हैविंग जस्ट वन स्टांस. He simply bring his foot forward, grabbed him, threw him back, and came back. And the competitor fell down. Everybody was amazed. How is it possible? मतलब एक shot और एक बार में competitor नीचे. He won that competition, reached quarter finals, semi finals. सब लोगों को एक ही चीज़ की चिंता रहती थी, कब ये अपना जादुई शॉट लगाएगा और सामने competitor धराशायी हो जाएगा. एंड सेमीफाइनल्स ऑल्सो ही डिड द सेम थिंग. पूरी तरह पिटता रहा और फाइनली एक मौका मिला जब कॉम्पिटिटर उसके पास आया, उसने ही रीच्ड द फाइनल्स.
रीचिंग द फाइनल्स, अब फाइनल वाले कॉम्पिटिटर को पहले से पता था इसके पास नहीं जाना, ये पास जाते तो पता नहीं क्या करता है, कुछ करता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसने बहुत पीटा, दूर दूर से खूब लातें मारी, खूब घूसे मारे, खूब पिटाई की उसकी, और फाइनली वो लड़का लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, फेल डाउन। कॉम्पिटिटर ने कहा नाउ आई हैव वन द कॉम्पिटिशन, उसके पास गया, आई एम सॉरी यार मुझे तुम्हें गिराना पड़ा और पीटना पड़ा। और उस लड़के को सिर्फ एक ही चीज़ आती थी, उसने तो एक ही चीज़ सीखी 2 साल तक, उसने लेटे लेटे पैर उठाया, पकड़ा, फेंका, एंड द कॉम्पिटिटर वॉज डाउन। He won the international championship, he became the best international martial art champion. And he was absolutely tired, bleeding was there, everybody called ambulance, जल्दी बुलाओ, फटाफट से बुलाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। He won that competition, press, मीडिया सभी लोग देख रहे हैं लगातार, और उसने बोला रुको मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मास्टर को बुला, मुझे मास्टर के साथ जाना है। मास्टर को बुलाया गया, उसको एक कार में बिठाया गया, मास्टर कार ड्राइव कर रहे थे, वो बगल में लेट सीट पर लेटा हुआ था, दोनों जा रहे थे। मास्टर की आंखों में आंसू थे। उस लड़के ने पूछा मास्टर आज मैं वो शर्त तोड़ना चाहता हूँ, आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आज मैं क्यों जीता? Why did I win? मास्टर said, बेटा मार्शल आर्ट में हर दाव का एक तोड़ होता है, हर स्टेप का एक काउंटर एक्शन होता है, और मार्शल आर्ट में इस स्टेप का जो तुम पिछले 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, सिर्फ एक ही तोड़ होता है कि जब तुम उसको पकड़ो, सामने वाला तुम्हारी बाईं बाह पकड़ के तुम्हें खींच दे, और तुम कैसे हारते? तुम्हारी तो बाईं बाह ही है। Most of us feel that there are certain subjects which are very very difficult, which are very difficult to crack, ये कभी नहीं सीख पाएंगे, ये तो हमारी कमजोरी है, ये तो हमारी वीकनेस है। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स देखकर या ज्योमेट्री को देखकर कई बार लोगों को ऐसे लगने लग जाता है, नो दिस इज नॉट समथिंग विच इज, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट येस, इवन योर वीकनेस कैन बिकम योर स्ट्रेंथ, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल। आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए, या फिर ऐसे एक मेंटर को ढूंढ लीजिए जो फाइनली आपकी एबिलिटीज़ आपको बता दे और आपसे उनकी पहचान करा दें, यू कैन सर्टेनली सक्सीड इन योर लाइफ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी, विच आई हैव टेकन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड टेक, दैट इज द फर्स्ट P of 3P formula, practice, which makes a person not only perfect but also powerful.